Hello everyone, I am Rambha Jha and today I am going to discuss about the topic WIPO. WIPO means World Intellectual Property Right Organization. So in this topic we will discuss about the WIPO headquarters, when the WIPO is founded, who is the head and the director general of the WIPO, then when the formation of WIPO is established, and when the patent organization, who is the patent organization of the WIPO, right? So this is the smallest video on WIPO. Hope you all are doing fine, and you will get to know after this video that what actually WIPO is, and each and every details about the WIPO, why the WIPO, what is the functions, how it works, right? So each and every details about the WIPO, the World Intellectual Property Right Organization, we will discuss anything about in this video. So as this is very interesting topic, so first of all I would like to give the introduction on the topic WIPO. Then we will discuss about who is the Director General of the WIPO, then the what do you mean by intellectual property, and intellectual property day, on which day the intellectual property day is celebrated every year, what kind of services of WIPO is providing on the daily basis, and what do you mean by the info network in this globalized. So first I would like to tell you about WIPO, World Intellectual Property Organization. The full form of WIPO is World Intellectual Property Right Organization. World Intellectual Property Right Organization is one of the specialized agency of the United Nations, or you can say that it is one of the 15 specialized agency of the United Nations, जिसकी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है. जो वाइपो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली इसका फाउंडेशन जो है वो फाउंड हुआ था 14 जुलाई 1967 को, एंड इसके जो हेड हैं हु इज़ द डायरेक्टर जनरल, Darin Tung is the current Director General of WIPO, and the formation of this WIPO is formation of this WIPO is by the United Nations. So in this video we will discuss each and every detail about the WIPO organization, the WIPO Academy, everything, right? So first of all, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी. इसको यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट करा है वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह, जिसके अंदर में ये हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. लाइक इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब है विच इज़ रिलेटेड टू माइंड, मीन्स एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ क्रिएटेड बाय द पीपल in under the Copyright Act, under the Patent Act, under the Trademark Act. Every intellect idea which is coming from your mind is approved by the WIPO, right? So WIPO was created in 1967 first time. इसकी basically जो object थी, ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स ऑफ द WIPO, जो 1967 में जब इसको इस्टेब्लिश की गई, तो ये सब कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ ही क्रिएट किया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनकरेज द क्रिएटिव एक्टिविटी. क्रिएटिव एक्टिविटी कहने का मतलब है कि क्रिएटिव एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ कॉपीराइट, इन द ये ट्रेडमार्क लॉज के अंदर में, या आप पेटेंट लॉज के अंदर बात करें, या जोग्राफिकल इंडिकेशन, मीन्स क्रिएटिव एक्टिविटी इन द एवरी फील्ड, लाइक literary work, musical work, dramatic work, any kind of work, right, which is created by the intellect mind. Or second goal is to promote the protection of intellectual property throughout the world. और promote करना है protection of intellectual property को. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही जो क्रिएटिव आइडियाज विच इज़ कमिंग फ्रॉम आवर माइंड, द पीपल्स माइंड, सो इनको प्रोटेक्ट करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड या अराउंड द वर्ल्ड. I want to let you know that WIPO, the World Intellectual Property Right Organization, which currently has 187 member states. इनके पास अभी 187 member states हैं who are participating in the who has participated in the WIPO, and administrators जो हैं वो 26 international treaties हैं, right? And it's as I said कि its headquarter is in Geneva, जो स्विट्जरलैंड में है. And the current Director General of WIPO is Darin Tung.
राइट। ये जो फ्रांसिस गरी हैं ये लास्ट थे, इनके पहले थे, अभी नहीं है। एंड वाइपो बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1974। वाइपो को स्पेशलाइज्ड एजेंसी का जो स्टेटस मिला था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, वो 1974 में मिला था। There was an agreement between United Nations and the WIPO notes in the article 1 that WIPO is responsible for। जब उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था तो जनरली उन्होंने ये डील हुई थी कि WIPO will be responsible for promoting creative intellectual activity and for facilitating the transfer of technology related to industrial property and to developing countries in order to accelerate the economic, social and cultural development, and subject to the competency and the responsibilities of the United Nations and its organization, particularly the United Nations Conference on the Trade and the Development and the UN Development Programme and the UN's Industrial Development Organization, as well as the UN Educational, Scientific and Cultural Organization and of the other agencies within the UN system। जो यूनाइटेड नेशन और वाइपो के बीच में जो डीलिंग हुई वो इन सब चीज़ों को लेकर डीलिंग हुई, जो भी कॉन्फ्रेंसेस एंड जो भी मुद्दे उठाए जाते थे वो इन सब चीज़ों के लिए ही उठाई जाती थी। लाइक फॉर प्रमोटिंग द क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, मतलब क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है कहीं ना कहीं, एंड फॉर द फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़, अगर किसी तरह जो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको फैसिलिटेट करेगी वाइपो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट, मतलब ये सब जो करेंगी, ये प्रमोशन करना, फैसिलिटेटिंग करना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इन द डेवलपिंग कंट्री, ये करेंगी किन चीज़ों के लिए? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। सब्जेक्ट टू द कॉम्पिटेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशन की कॉम्पिटेंसी के बारे में एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो इट्स और इसके ऑर्गेन्स के बारे में, एज वी नो देयर इज़ अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेन्स, तो पर्टिकुलरली द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो किया जाएगा वो ट्रेड पे किया जाएगा और उसके डेवलपमेंट के लिए करा जाएगा। द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होंगे एंड द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करा जाएगा, एज वेल एज द यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द अदर एजेंसी विद इन द यूनाइटेड सिस्टम। तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन और वाइपो के बीच में जो डीलिंग हुई थी किसी चीज़ को लेकर, वो यही हुई थी कि ये सब चीज़ें क्रिएट करनी है, प्रमोट करना है क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को, फैसिलिटेट करना है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को, राइट, एक्सिलरेट करना है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट को एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, है ना। और इससे क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन की एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। Okay, next when we talk about the WIPO has a significant financial resources, तो हम ये कह सकते हैं कि वाइपो के पास अपना एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। वाइपो को ये जो इंडिपेंडेंट 187 मेंबर्स आर देयर हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द एग्रीमेंट, वो क्या करते हैं, वो वाइपो को फंड करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इन दिसंबर 2011 वाइपो पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉपर्टी रिपोर्ट। 2011 में क्या हुआ, वाइपो ने पहली बार इसकी ये वर्ल्ड प्रॉपर्टी रिपोर्ट को दिया, किस चीज़ पे? ऑन द चेंजिंग फेस ऑफ द इनोवेशंस, मतलब इनोवेशन के फील्ड में, लाइक इफ़ समथिंग इज क्रिएशंस पे, इन्वेंशंस पे, तो एनी काइंड ऑफ चेंजिंग फेसेस ऑफ इनोवेशंस, द फर्स्ट सच रिपोर्ट ऑफ द न्यू ऑफिस ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट। तो इनका जो डाटा था वाइपो ने फर्स्ट टाइम पब्लिश करा 2011 में, राइट। एंड वाइपो इज ऑल्सो अ को पब्लिशर ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वाइपो को मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन को ऑल्सो को पब्लिशर भी कहा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ वाइपो, देयर आर there are 5 डायरेक्टर जनरल्स। फर्स्ट वाज द जॉर्ज बोडेन होशेन जो 1970 से लेकर 1973 तक थे। फिर आर्पेड बॉक्स जो 1973 से लेकर 1997 तक थे। एंड देन कामिल इद्रिश जो 1997 से लेकर 2008 तक थे। देन फ्रांसिस गरी एंड राइट नाउ दरेन तारंग इज द करेंट डायरेक्टर।
Let me tell you something about Darin Tarang. तो Darin Tarang is the 5th and current Director General of World Intellectual Property Right Organization. इसके पहले he was the Chief Executive of Intellectual Property Office of Singapore, IPOS जिसको कहते हैं. First वहाँ पे वो CEO थे, Chief Executive of Intellectual Property Office of Singapore में. From November 2015 से लेकर 2020 तक. It was taken over by the जो ये थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ सिंगापुर जो थी वो टेक इन ओवर कर लिया गया रीना ली के द्वारा ऑन 1 अगस्त 2020 में. ओके एंड ऑन 4 मार्च 2020 द Tung won the nomination for the post of Director General of WIPO, so he got the opportunity to become the Director General of World Intellectual Property Right Organization with the backing of United States. Now when we discuss about intellectual property, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिव राइट्स इसको कहा जाता है. मीन्स द कंप्लीट राइट ओवर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट, जिसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है. अ कंप्लीट राइट्स टू द क्रिएशंस ऑफ द माइंड. मीन्स जिन लोगों ने भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू कुछ क्रिएट करा है, एक्टिविटी बनाई या चीज़ें बनाई है, इनोवेट करा है, क्रिएट करा है, इन्वेंट करा है, लिखा है ना, ड्रामा क्रिएट करा है, स्टोरी लिखी है, पोएम्स लिखे, इन एवरी सेक्टर, लिटरेचर के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में, सिनेमेटोग्राफिक के फिल्म्स में, एवरी वे, ठीक है. तो ओनर्स आर ग्रांटेड द सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिकॉग्नाइज किया गया एज ए लीगल राइट. सो ओनर्स जो होते हैं बेसिकली जिन्होंने क्रिएट करा होता है इन सब एक्टिविटीज़ को या जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करते हैं विच इज़ कमिंग फ्रॉम देयर माइंड or they have created, so they are the owner. So owners are granted certain exclusive rights to the variety of intangible assets such as musical, literary and artistic works. Means any of the person if they have created such things in the musical field, in the literary field or in the artistic field, they will definitely get their exclusive rights over that property, right? So this is the legally recognized exclusive rights. Now when we talk about another thing, तो common types of intellectual properties जो होते हैं includes basically copyright होते हैं, trademark patents होते हैं, industrial design rights होते हैं, traders होते हैं, jurisdictions and secrets, and other is geographical indications also. तो ये जो कॉमन टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बेसिकली इन सब कॉपीराइट होते हैं, राइट. इंक्लूड्स कॉपीराइट एक्ट है, फिर ट्रेडमार्क, इनको हम डिफरेंट एक्ट्स में भी इलेबोरेट करके इसको पढ़ सकते हैं. समझने के लिए थोड़ा कॉपीराइट एक्ट को इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा. ट्रेडमार्क एक्ट को देयर इज़ अ रूल्स रिगार्डिंग द पेटेंट, मीन्स हाउ टू गेट द पेटेंट, कितने ईयर्स के लिए पेटेंट मिलता है, देन हाउ टू गेट द कॉपीराइट, कितने ईयर्स के लिए आपको कॉपीराइट मिलेगा. एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दैट एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट, राइट. So this is basically the intellectual property right, a complete right over a creation of the minds, जो सिर्फ एक ओनर के पास ही रहता है, ठीक है, और ओनर के पास ही ये राइट है और he should get the benefit for that. Okay, when we talk about the annual day of World Intellectual Property Day, so basically 26th April is known as the World Intellectual Property Right Day, जो साल में एक बार मनाया जाता है annually, which is related to Inventors Day. इसको आप अलग अलग नामों से अगर समझने की कोशिश करें तो ये Inventors Day के भी नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के भी नाम से जाना जाता है. The event was established by WIPO in 2000. The first time the event was established, जो WIPO की जो इवेंट थी वो फर्स्ट टाइम ये इस्टेब्लिश की गई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पे इन 2000 में. टू किस चीज़ के लिए? टू राइज द अवेयरनेस ऑफ द हाउ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड द डिज़ाइंस impact on the daily life and to celebrate the creativity and the contribution made by the creators, innovators and to development of the societies across the globe. ये जो इवेंट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की क्रिएट की गई थी वो फर्स्ट टाइम 2000 में की गई थी कुछ अवेयरनेस को राइज करने के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू हाउ टू गेट द पेटेंट, हाउ टू गेट द कॉपीराइट, हाउ टू गेट द ट्रेडमार्क्स एंड हाउ टू गेट द डिज़ाइन इम्पैक्ट्स.
ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि हर डेली बेसिस पे क्या होता है ना कि सबकी क्रिएटिविटी, लाइक दे शुड सेलिब्रेट देयर क्रिएटिविटी एंड द क्रिएशन, जो भी क्रिएशंस हो रहा है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पीपल्स माइंड मेड बाय द क्रिएटर्स, दोज पर्सनस हु इज़ क्रिएटिंग द थिंग्स, दे आर नोन एज द क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स, जो इन्वेंट करते हैं चीज़ों को, टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी की अगर ध्यान दें तो वी नीड थिंग्स इन द सोसाइटी, तो अगर चीज़ों को लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने इंटेलेक्ट माइंड के थ्रू, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एनर्जी उस पर वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही शुड बी गेट द बेनिफिट राइट अक्रॉस द ग्लोब. Okay, so now it is the most important topic, that is WIPO Academy. So what kind of services the WIPO provide? WIPO generally have created the WIPO Academy, जिसमें क्या होता है कि WIPO Academy के थ्रू पीपल को डिस्टेंस लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, और फेस टू फेस कोर्सेज को ऑल ईयर अराउंड द वर्ल्ड वो अटेंड कर सकते हैं, टॉट बाय द पीपल हु नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये उन लोगों के, ये जो एकेडमी है WIPO Academy है, उन लोगों के थ्रू चलाया जाता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छे से जानते हैं. बेसिकली द एकेडमी इज़ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये जो एकेडमी है वो क्रिएट की गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए. किसकी चीज़ के लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए. किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में, एंड स्किल्स बिल्डिंग फॉर द WIPO मेंबर स्टेट्स इन द पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज. लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड द कंट्रीज इन द ट्रांजेक्शंस. द एकेडमी, ये जो WIPO Academy है, इट वर्क्स टू हेल्प द बिल्ड द ह्यूमन कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज़ इसेंशियल, जो बहुत ही ज़रूरी है टू इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी समहाउ. तो व्हेन WIPO प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये जो एकेडमी है ये कहीं ना कहीं ये एक्सेस भी प्रोवाइड करती है टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन के थ्रू. लाइक इफ पीपल आर इन द नीड ऑफ टेक्नोलॉजीज, ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दे कैन एक्सेस दैट IP इंफॉर्मेशन. वो एक्सेस भी कर सकते हैं, और ये एक्सेस WIPO Academy ही प्रोवाइड करती है, सो दैट द पीपल कैन सर्च देयर टेक्नोलॉजीज, ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आवर ग्लोबल डाटाबेस राइट. फिर आता है WIPO डिलीवर ग्लोबल सर्विसेज फॉर द प्रोटेक्टिंग IP. WIPO जो होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये डिलीवर करता है ग्लोबल सर्विसेज को फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड WIPO शेप्स द इंटरनेशनल IP रूल्स फॉर चेंजिंग द सोसाइटी. WIPO कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेप भी करता है रूल्स बनाने में फॉर द चेंजिंग सोसाइटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फो नेटवर्क हो जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की बात करें तो WIPO हैज़ इस्टेब्लिश्ड द WIPO नेट. WIPO नेट का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क राइट. तो ये कभी आते हैं, पूछे जाते हैं इसके फुल फॉर्म. तो WIPO हैज़ इस्टेब्लिश्ड द WIPO नेट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, अ ग्लोबल इन्फो नेटवर्क. इसको ग्लोबल इन्फो नेटवर्क की तरह भी कहा गया है, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं. देयर आर द प्रोजेक्ट सीक्स टू लिंक ओवर 300 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू WIPO नेट जो स्टैब्लिश की गई है WIPO के थ्रू, इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं. देयर आर, आप जानते हैं कि हम 187 मेंबर्स आर द ये इसके WIPO के 187 मेंबर्स हैं बेसिकली. तो द प्रोजेक्ट सीक्स टू लिंक ओवर 300 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज. 187 मेंबर होने के बाद भी इनके पास 300 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफिसेज भी हैं इन ऑल WIPO मेंबर स्टेट्स. इन ऑल WIPO मेंबर स्टेट्स में, मतलब 187 मेंबर्स में देयर आर 300 intellectual property offices. In addition to providing a means of secure communication among all connected parties, ये कहीं ना कहीं जो in addition अगर आप आगे की बात करें तो ये प्रोवाइड भी करता है secure communication among the all connected party. ये एक secure communications between the parties जो मेंबर हैं WIPO के, उनके बीच में secure communication ये कनेक्ट करता है. WIPO नेट फाउंडेशन फॉर द WIPO's इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज. ये जो WIPO नेट का फाउंडेशन है कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन है फॉर द वर्ल्ड्स WIPO's इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए राइट. फिर अब अगर आप और WIPO को एक्सप्लोर करते हो तो ये IP की सर्विसेज भी देता है, ये पॉलिसीज़ भी बनाता है और कॉपरेशन भी कराता है. जब भी हम बात करें कैसे, तो IP की सर्विसेज कहने का मतलब है प्रोटेक्टिंग IP एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. मीन्स व्हेन वी एक्सप्लोर द WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट प्रोवाइड द IP सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विसेज. इससे क्या होता है कि इट इज़ प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
somehow and resolving the disputes amongst the members of the state. किसी भी तरह का जो disputes आता है amongst this ये countries जो भी participating countries हैं वाइपो के, उनके बीच में ये हर तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है. सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसी, तो डिसीजन मेकिंग एंड निगोशिएटिंग बॉडीज़ जो है आईपी की, उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. अदर पॉलिसीज ऑफ द टॉपिक्स, ये डिसीजन मेकिंग पावर भी है इनके पास, निगोशिएटिंग पावर भी है आईपी की, एंड अदर पॉलिसीज टॉपिक से रिलेटेड ये कर सकते हैं, तो इनके पास ये भी पावर है. देन कोऑपरेशन है इनका, डेवलपमेंट ग्लोबल कोऑपरेशन है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज लेवल पे बहुत डेवलप भी कर रहे हैं और कोऑपरेट भी करते हैं आपस में कहीं ना कहीं. तो आपको वाइपो को समझने में दिक्कत नहीं आएगी. तो वाइपो इज़ द ग्लोबल फोरम फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज. वाइपो जो है वो एक ग्लोबल फॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज. एक पॉलिसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कोऑपरेशन भी देता है. When we talk about WIPO's staffs, वाइपो के जो स्टाफ्स होते हैं बेसिकली, जो हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो जनरली शेयर करते हैं एक कॉमन गोल. उनकी एक ही ऑब्जेक्टिव है, मीन्स दे ऑल थिंक अबाउट वन गोल, जैसे कि एन एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल आईपी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू ऑल. तो वाइपोस के स्टाफ्स शेयर करते हैं कॉमन गोल. उनका जो ऑब्जेक्टिव हो यही है कि एक एफिशिएंट और एक्सेसिबल आईपी सिस्टम होना चाहिए जो वो सबको इक्वल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे. That's all for today. Hope you all understand what I have discussed. So what we discussed, the introduction, the Director General of WIPO, intellectual property right क्या होती है, फिर intellectual property right day कब मनाया जाता है, and services of the WIPO and InfoNet. तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. एक बार रिव्यू करा देती हूँ मैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन वाइपो का फुल फॉर्म होता है. ये वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन है. वाइपो हैज़ क्रिएटेड इन 1967. इसका गोल होता है टू इनकरेज द क्रिएटिव एक्टिविटी एंड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू द वर्ल्ड. फिर वाइपो करेंटली हैज़ 187 मेंबर्स. इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं. इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, दैट इज़ इन स्विट्जरलैंड. और जो करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वाइपो हैं वो दरीन तारंग हैं. वो आप एक बार चेक कर लेना, वो अब आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि वो चेंज होते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद. तो वाइपो बिकम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी. बनाया गया था वाइपो को स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन है 1974 में. जो एग्रीमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन और वाइपो के बीच में, वो कुछ चीज़ों को लेकर हुई थी, जैसे कि प्रमोटिंग creative intellectual activity, facilitating the transfer of technologies to accelerate the economic, social and cultural development. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे UN एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द अदर एजेंसीज. तो इन सब चीज़ों पे उनको ध्यान देना है. देन वाइपो हैज़ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अदर कंट्रीज भी उनको देती है. फिर फर्स्ट टाइम 2011 में वाइपो हैज़ पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट. किस चीज़ के एस्पेक्ट में? चेंजिंग फेस ऑफ द इनोवेशंस के एस्पेक्ट में फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने 2011 में सबमिट करी थी. एंड वाइपो इज ऑल्सो अ को पब्लिशर ऑफ द ग्लोबल इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है, डायरेक्टर जनरल की हमने बात कर ली. हु वाज द फर्स्ट? जॉर्ज बेडेनहोशन 1979 से लेकर 1973 तक थे. एंड रेस्ट यू कैन हैव इन डिटेल, you can google each and every detail about the particular director general, but right now the current one is Dareen Taran. ठीक है. फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें कि व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक लीगल राइट रिकॉग्नाइज की गई है जो एक एक्सक्लूसिव और कंप्लीट राइट है एक ओनर की, जो क्रिएट करता है इसको, जो बनाता है, जो अपना एनर्जी टाइम इसमें लगाता है. किस चीज़ में? टेंजिबल एसेट्स के फील्ड में, म्यूजिकल फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में, आर्टिस्टिक वर्क में, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स में, एनी फील्ड में, राइट. एंड कॉमन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम आगे पढ़ेंगे, इनकी जो इंडिविजुअल राइट्स हैं जिन पे लॉज हैं, वो कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट है, फिर ये जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल. जो 26 अप्रैल हर साल जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है. इनकी जो फ्रीक्वेंसी है मीटिंग की वो साल में एक बार होती है. रिलेटेड टू द इन्वेंटर्स डे, इनको इन्वेंटर्स डे के भी नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है और कॉपीराइट डे के भी नाम से भी जाना जाता है. तो इवेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वाइपो इन 2000. जो इवेंट है वाइपो की वो इस्टेब्लिश कर गई थी फर्स्ट टाइम 2000 में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये राइज करेगा अवेयरनेस that how the patent, copyright, trademark and design impact on the daily life. ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है. टू सेलिब्रेट द क्रिएटिव एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय द क्रिएटर्स एंड
innovators and to development of the societies across the globe. Then when we talk about the services of the WIPO, तो WIPO एक अपनी अकेडमी है जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू लोगों को कोर्स फेस टू फेस कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं और लोगों को पढ़ाती हैं, टॉट बाय द पीपल हु एक्चुअली नो व्हाट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्चुअली इज़. देन WIPO जो है वो उस तरह की प्रोवाइड करती हैं एक्सेसिबिलिटी IP इंफॉर्मेशन रिलेटेड, सो दैट द पीपल हु इज़ ये क्रिएटिंग द न्यू थिंग्स वो क्या कर सकते हैं, सर्चिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं एट द ग्लोबल डाटाबेस राइट. एंड WIPO डिलीवर ग्लोबल सर्विसेज फॉर प्रोटेक्टिंग IP. And WIPO shapes the international IP rules for changing the society. When we talk about info network, तो WIPO has established the WIPO net, जिसके थ्रू लोग ग्लोबल इन्फो नेटवर्क के थ्रू सर्च कर सकते हैं. WIPO नेट का फुल फॉर्म मैंने बताया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क. ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो लिंक करता है 300 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेज में जो कि WIPO के मेंबर्स के पास है, 300 ऑफिसेज राइट. फिर IP जो सर्विसेज है इसको और एक्सप्लोर अगर आप करते हैं तो YP जो है सर्विसेज जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और डिस्प्यूट्स को, IP रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है. पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी है WIPO के पास एंड निगोशिएटिंग प्रोसेस भी है, पावर भी है, बॉडीज़ भी है IP की एंड अदर पॉलिसीज़ टू. कॉर्पोरेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एट द ग्लोबल नेटवर्क है. WIPO इज़ अ ग्लोबल फोरम फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड द कोऑपरेशन. WIPO's स्टाफ्स की बात करें तो ये एक कॉमन गोल शेयर करते हैं, जैसे an efficient and accessible IP system that provides the benefit to everybody, right? Thank you all. Hope you understand the all things about the World Intellectual Property Right organizations. In next video, we will discuss about the other things. So, thank you all.